In the previous lecture of data structure, we talk about the binary search tree and its operation. So now we discuss about the complexities of these binary search tree operations. The very first is the search. So the average time for the searching in the binary search tree takes order of log n time, and the worst case is order of n, and the best case is order of 1. Because in case of सर्चिंग एनी एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री, अगर हमें कोई भी एलिमेंट सर्च करना है, फॉर एग्जांपल 13 सर्च करना है, तो 13 हमें पहले ही रूट से स्टार्ट करेंगे सर्चिंग, तो 13 जो है फर्स्ट वाला रूट एलिमेंट ही मिल गया, तो हमारा बेस्ट केस होगा कि हम एक ही स्टेप में हमें जो है वो सर्चिंग जो है कंप्लीट होगी. सो दैट इज़ द बेस्ट केस. द वर्स्ट केस इज़ कि हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो सारे एलिमेंट्स रूट से लेके उसकी लीफ नोड तक एंड तक जाते हैं और एंड वाला एलिमेंट है. एवरेज केस इन बिटवीन जो हमें मिल जाता है. तो सर्चिंग के लिए हमें एवरेज टाइम कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन. वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन एंड द बेस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ 1. In case of insertion, it also takes the average time of order of log n. Worst case is order of n and the best case is order of 1. In case of deletion, it takes the order of log n, order of n in the worst case, and the best case is order of 1. So we can see that in all cases the complexities are same in searching, insertion and the deletion. So the next we have some of the applications of the binary search tree. So mainly the binary search trees are used in many search applications where the data is constantly entering or leaving, such as map and set of objects in many languages libraries. So the second application is the binary search trees are used to store a set of names and being able to look up based on a prefix of the name. These are basically used in the internet routers. Third application is it is basically used for storing a path in a graph and being able to reverse any subsection of the path in order of log n time. So it is mainly useful in traveling salesman problem, which is one of the application or one of the technique to find the route. So next application is finding the square root of a given number, and the next application is it allows you to do range searches efficiently. So these are some of the applications of the binary search tree. So we see that in binary search tree we have the search, insertion and deletion operation, and it takes the worst time is order of n and the average is order of log n. So the worst time अगर हमें इतना लग रहा है, अगर हमारे पास कोई ट्री हो, बाइनरी सर्च ट्री हो जिसमें हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में हो, सिर्फ जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि अगर हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर हमें जो रूट नोड क्या है गिवन, जो रूट नोड है वो क्या हमें गिवन है 42. सो नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर उसका लेफ्ट सब ट्री है बट राइट वाला नहीं है. तो उस केस में क्या है कि हमारे पास लेफ्ट में 35 है, नेक्स्ट उसके आगे दो चाइल्ड हैं आगे हैं, मीनिंग वाइज कि इस साइड पे हमें सिर्फ लेफ्ट पोर्शन में ही डाटा है, दूसरी साइड क्या है कि रूट हमारे पास 10 है और उसमें हमारे पास सिर्फ राइट चाइल्ड है. तो इन दैट केस लेफ्ट वाले केस में क्या था कि अगर हमारी इनपुट अपेयर हो इन नॉन इंक्रीजिंग मैनर एंड in case of this opposite side we have the input appears in the non-decreasing manner. So in that cases we observe that the binary search trees are the worst case performance closest to the linear search algorithm, that is order of n. So in real time data we cannot predict the data pattern and their frequency. So a need arises to balance out the existing binary search tree. So हमें ये बाइनरी सर्च ट्री ऐसी चाहिए जिसे हम बैलेंस कर सकें. बैलेंस का क्या मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट
सब ट्रीज जो है वो इक्वली डिवाइड हो सके फ्रॉम द रूट नोड, तो उसके लिए हम AVL ट्री को यूज़ करते हैं। सो AVL ट्री क्या है? दीज आर बेसिकली द बाइनरी सर्च ट्री with the balance condition. So we can say that these are the binary search trees with a balance condition, or we can say that these are the self balancing binary search tree. इसका नेम कैसे पड़ा AVL? विद द जो इसको इन्वेंट किया था और द डेवलपर और द रिसर्चर नेम इज GM एडल्सन वेल्स्की एंड EM लैंडिस। सो द व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन? बाइनरी सर्च ट्री तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, जिसमें हमारे पास रूट नोड होती है और उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होता है रूट से कम होता है और राइट साइड वैल्यू जो होती है रूट से ग्रेटर होती है। तो बैलेंस कंडीशन कौन सी हुई अब? in which for every node in the tree the height of the left and right subtree can differ at most 1. at most 1 बैलेंस कंडीशन में क्या है कि जिसमें लेफ्ट एंड राइट सब ट्री जो है तो उसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 का हो, ये नहीं कि यहाँ पर राइट सब ट्री है ही नहीं है, लेफ्ट सब ट्री है। क्लियर? यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये रूट है तो उसका लेफ्ट सब ट्री है बट राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये पूरी लेफ्ट सब ट्री ही आगे बढ़ी जा रही है, यहाँ पर राइट सब ट्री तो है नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन कौन सी हुई? जिसमें हम दोनों का डिफरेंस क्या रख सकें? एटमोस्ट 1। तो एटमोस्ट 1 हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक अलग से और डेफिनेशन मैंने लिखी है। तो AVL ट्री को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द बाइनरी सर्च ट्री which having the properties in which every subtree of every node differ in height by at most 1 and every subtree is an AVL tree. तो आगे से आगे सब ट्री भी क्या होगी? AVL ट्री ही होगी। तो बैलेंस फैक्टर जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। क्लियर? तो जहाँ पर बैलेंस फैक्टर हम हाइट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हाइट को कैसे पता करना है कि इसकी हाइट कितनी है? तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक रूट नोड है, ये हमारी रूट नोड है, ये हमारी लेफ्ट सब ट्री है और ये हमारा राइट सब ट्री है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये हमारी लेफ्ट थी सब ट्री एंड ये राइट सब ट्री थी। अगर हमारी लेफ्ट टोटल हमारी हाइट h है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? h-1 एंड राइट की क्या है? h-2। तो हमारी यहाँ पर जो मेन बैलेंस रिक्वायरमेंट होगी वो क्या है? दोनों क्या डिफर कर रही है? 1 से। क्लियर? तो ये था सिंपल कि हम कैसे समझ सकते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल है यहाँ पर, और ये क्या है? हमारे पास नोड सिर्फ अगर एक ही हो तो उसकी हाइट क्या है? 0। जहाँ पर हमारे पास एक नोड है रूट नोड, तो यहाँ पर उसके सिर्फ राइट सब ट्री है तो उसकी राइट सब ट्री की हाइट क्या होगी? 1। तो 1 का क्या मीनिंग है? यहाँ पर मान लो कि 0 थी और यहाँ पर 1, तो दो नोड्स आगे सेकंड लेवल पे पहुँच गए तो हाइट क्या बन गई? 1। तो अगर इसकी बात करें, दिस इज़ द लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2, तो हाइट भी क्या होगी फिर? 2। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है कि अगर हमारे पास ये रूट नोड है, क्लियर करके थोड़ा, तो अगर हमारे पास ये क्या है? एक रूट नोड है, तो उसका जो लेफ़्ट सब ट्री है ये है और राइट सब ट्री ये है। तो लेफ़्ट सब ट्री की अगर हमने हाइट देखनी है तो वो कैसे पता चलेगी? क्योंकि हमारे पास ये क्या है? मेन रूट। ठीक है, तो अगर इसका मान लो कि इसका लेवल क्या है? 0, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट की 2। सिमिलरली राइट सब ट्री में हम देखेंगे लेवल 0 था रूट का, देन 1, 2 एंड 3, 3 हो गया। दोनों में हम देखना है इसकी अब हाइट क्या हो गई? अब 2। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 2 एंड राइट सब ट्री की टोटल हाइट क्या है? 3। तो 3 - 2 हो गया 1। इट मीन्स डैट दोनों का लेफ्ट एंड राइट का सब ट्री का डिफर क्या होना चाहिए? डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। So this is the condition for the AVL tree. The left and the right subtrees differ by at most 1 in n height. So here is also an example कि हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि
अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो हम उसे एवीएल ट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे एक प्रॉपर बैलेंस ट्री हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में क्या गिवन है कि हमारे पास ये एक क्या है, बैलेंस ट्री है। बैलेंस ट्री का क्या मतलब है, यहाँ पर एक लेफ्ट बी क्या है, रूट है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट सब ट्री ए एंड राइट सब ट्री इज सी। ए के अगर हमने देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका लेवल क्या है, ज़ीरो, लेवल ज़ीरो, एंड दिस इज यहाँ पर लेवल ज़ीरो है एंड यहाँ पर वन है। तो दोनों का अगर देखा जाए कि हमारे पास बैलेंस फैक्टर क्या आता है, बैलेंस इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो हाइट ऑफ लेफ्ट की क्या है, वन, और राइट की भी क्या है, वन। वन माइनस वन क्या आ गया फिर, ज़ीरो। क्लियर। तो यहाँ पर ज़ीरो है तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो एंड ज़ीरो लिखा हुआ है। यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो क्या है, उसका बैलेंस फैक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है। क्लियर। तो अगर हमारे पास नॉन बैलेंस्ड कौन सी है, अगर ये देखा जाए तो इसमें हमारे पास लेफ्ट सी इज द रूट, उसका लेफ्ट पोर्शन कौन है, बी एंड ई। तो अगर हमारे पास लेवल यहाँ से स्टार्ट करें, मान लो हाइट हम यहाँ से स्टार्ट करें ज़ीरो, वन एंड टू, बट उसके राइट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो टू माइनस लेफ्ट साइड पे कितना आ गया फिर, अब यहाँ से अगर टू माइनस ज़ीरो बिकम्स टू, और वी कैन से दैट in second subtree the left subtree C has height 2 and right subtree has height 0. तो डिफरेंस इज 2। तो यहाँ पर वो नॉन बैलेंस्ड आ गया। तो सिमिलरली हम अगर आगे की थर्ड की बात करें तो उसमें भी क्या है कि राइट वाला पोर्शन जो है उसकी जो है हाइट है 2 है, और लेफ्ट वाला जो है वो कुछ भी नहीं है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 0। तो 2 ज़ीरो माइनस टू, क्लियर। लेफ्ट की ज़ीरो है माइनस राइट सब ट्री की हाइट माइनस टू बिकम्स माइनस टू। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वो नॉट बैलेंस कंडीशन होगी। तो उसके लिए हम एवियल ट्री को यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पर भी एक एग्जांपल देखी जाए तो इसमें भी क्या चीज़ है कि हमारे पास एक ट्री है जिसमें हमारे पास पहले चेक करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो बाइनरी सर्च ट्री है, रूट है 12, लेफ्ट उसका है 8 एंड राइट इज 18। लेफ्ट जो है वो रूट से कम है एंड राइट साइड 18 है, वो रूट से ग्रेटर है, विच मीन्स इट इज़ द बाइनरी सर्च ट्री। आगे भी वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जैसे 5 इज़ लेस देन 8 एंड 11 इज़ ग्रेटर देन 8, 17 इज़ लेस देन 18, उसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो ये अब चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो पहले जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें इसके लिए चेक करो, दिस इज 0 1, क्लियर, दिस इज 0 1 2 एंड 3। तो लेफ्ट सब ट्री के लिए हाइट कितनी है, 3 माइनस, ठीक है। राइट सब ट्री के लिए चेक करो, 0 1 एंड 2, इसके लिए कितनी आ गई, 2, रिजल्ट इज 1। इट मीन्स डैट के बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 1। तो कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इट इज़ यस, इट इज़ एन एवियर ट्री। Examination shows that each left subtree has the height 1 greater than each right subtree. तो नेक्स्ट अगर इसकी बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, तो इसमें क्या है हमारे पास कि रूट नोड है। अगर यहाँ पर चेक करें 0 1 2 3 एंड 4, एंड ऑपोजिट है 0 1 एंड 2, 4 माइनस 2 इज 2। तो यहाँ पर ये क्या है, एवियल ट्री नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस क्या आ रहा है, 2, आना कितना चाहिए, 1, क्लियर। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी ट्री एवियल ट्री है या नहीं है, बैलेंस ट्री है या नहीं है। सो द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इज द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। सो a node with any other balance factor is considered unbalanced and requires rebalancing the tree. The balance factor is either stored directly at each node or computed from the height of the subtree. Some of the properties of the avial tree are these are identical to standard
binary search tree except that for every node in an aviar tree, the height of the left and right subtree can differ by at most one. Aviar trees are a quick height balance tree of order k of order height balance 1. क्लियर, इसे हम ये भी बोलते हैं. देन द फॉलोइंग इज द हाइट डिफरेंशियल फार्मूला जो हमने पहले किया था. दैट इज बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट लेफ्ट ट्री माइनस हाइट राइट ट्री. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द एवियर रोटेशन which are to be used to balance a given binary search tree. These rotations are the left rotation, right rotation, left right rotation and left right rotation. So the फर्स्ट दो जो हैं वो सिंगल रोटेशन है एंड अगली जो है वो डबल रोटेशन है. तो इसमें हम यूज़ करते हैं टू बैलेंस एनी बाइनरी सर्च ट्री. अगर हम पहले की बात करें तो लेफ़्ट में क्या है कि हमारे पास अगर कोई ट्री है, क्लियर, तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रूट है, उसका राइट पोर्शन है, लेफ़्ट वाला नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे लेफ़्ट रोटेशन. If a tree becomes unbalanced when a node is inserted into its right subtree of the right subtree, then we perform the single left rotation. तो उसके लिए क्या है कि हम लेफ़्ट रोटेशन करेंगे. तो B को रोटेट किया ऊपर, देन हमारा B जो बन गया रूट बन गया. इसके लिए B इज द रूट नाउ एंड A को लेफ्ट बना दिया और C को राइट. So A becomes the unbalanced as node is inserted in the right subtree of A's right subtree, and we perform the left rotation by making A left subtree of B. तो इस तरह से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं. राइट रोटेशन अगर राइट साइड पे नहीं है देन क्या करेंगे, हम C को राइट साइड पे लेके जाएंगे. C is on the right side and we can balance this tree. Next we have the left राइट रोटेशन. लेफ्ट राइट रोटेशन में क्या है, डबल रोटेशन जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं. तो डबल रोटेशन और स्लाइटली कम्प्लेक्स होती हैं. तो इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड टेक द नोट ऑफ ईच एक्शन परफॉर्म्ड बाय रोटेशन. लेट्स फर्स्ट चेक हाउ टू परफॉर्म द लेफ्ट राइट रोटेशन. लेफ्ट राइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट रोटेशन फॉलोड बाय द राइट रोटेशन. इसमें हमारे पास फर्स्ट अगर एग्जाम्पल ली जाए तो हमारे पास एक ट्री है, क्लियर. तो उसके लिए हमारे पास उसमें हमने ट्री है, उसमें हम उसके लेफ़्ट साइड पे हैं और उसकी हाइट क्या है 2 ऑन द लेफ़्ट साइड. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नोड हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री. दिस मेक्स सी एन अनबैलेंस. तो उसके लिए हमने क्या परफॉर्म किया, पहले B एंड A को की लेफ्ट सब ट्री अप्लाई किया. तो लेफ्ट सब ट्री में क्या किया, B पे अप्लाई किया. तो B पे जब अप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट कि हमारे पास B एंड E जो है वो एंड पे आया. तो उसको अगेन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि राइट रोटेशन अप्लाई की ऑन टू द ट्री. दैट मीन्स B न्यू रूट नोड क्या बन गई हमारी B एंड देन उसे क्या किया हमने राइट रूट अप्लाई कर दिया. सिमिलरली केस होगा हमारा जब हम राइट लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करते हैं. उस केस में क्या है कि अगर हमारे पास अगर कोई भी बाइनरी सर्च ट्री है उसमें हमारे पास राइट सब ट्री है बट लेफ़्ट नहीं है, बट लेफ्ट राइट का भी क्या है, उसके भी हमारे जो राइट सब ट्री का के आगे जो लेफ़्ट चाइल्ड है उसमें हमने क्या अप्लाई किया, राइट रोटेशन अप्लाई की. राइट रोटेशन के बाद एंड में हमने क्या है लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई की एंड देन बैलेंस द ट्री. So these are some of the rotations which are to be used in the insertion and the deletion operation in case of the aerial search tree. यहाँ पर अगर हमारे पास एक एग्जांपल आती है कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है उसमें हमने 6 इंसर्ट करवाना है. तो 6 कहाँ पर हो सकता है, पहले चेक करो कि रूट क्या है 5
तो 6 इंसर्ट करवाना है, 6 5 से ग्रेटर है तो किस साइड पे आएगा, राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यू होती है रूट से। तो वहाँ पर चेक किया, अब यहाँ पर 8 है तो 6 क्या है, 8 से लेस, तो लेस है तो 8 के लेफ्ट साइड पे होगा। तो आगे क्या है, 7 है, 7 के लेफ्ट, 7 से कम है तो लेफ्ट साइड पे आ गया 6। बट नाउ यहाँ पर क्या है, फिर चेक करना है कि एवियल ट्री है ये, तो एवियल में बैलेंस कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो बैलेंस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया, अब 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। अब इसे बैलेंस कैसे करना है कि हमारे पास डिफरेंस जो आए 1 आए, तो उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पर क्या आनी है, अब क्या अप्लाई करेंगे, राइट रोटेशन। तो राइट रोटेशन अप्लाई की, देन हमारे पास 7 जो हो गया वो रूट बन गया, 6 से कम है और 8 जो है राइट रोटेशन हुई तो 8 क्या हो गया उसका, राइट चाइल्ड बन गया। तो यहाँ पर अब कंडीशन चेक करो, 0 1 2 3, 0 1 एंड 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो ये क्या है, बैलेंस बन गई। अब दिस इज द इंसर्शन ऑपरेशन इन केस ऑफ द एवियल ट्री। अब हमारे पास डिलीशन अप्लाई करें हैं, तो डिलीशन में हमने क्या है कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है दिस, तो इसमें हमने 4 डिलीट करना है। तो 4 कहाँ पर है, इसके इस साइड पे। तो 4 को जब डिलीट कर दिया आफ्टर डिलीशन, उसे फिर दोबारा हमने बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या किया कि इस जगह पर हमने राइट रोटेशन अप्लाई कर दी। तो राइट रोटेशन अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर हमारी जो है वो उसे बैलेंस करने के बाद हम उसे एवियल ट्री में बदल देंगे। जब भी इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन ये भी चेक करना है कि वो एवियल में बैलेंस्ड भी हो। इन केस ऑफ एवियल बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन डिलीशन जैसे परफॉर्म होती है वैसे ही होगी, इसमें वैसे ही होगी, बट डिफरेंस इज दैट उसे हमें बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। So some of the key points of the AVL are, these three remain balanced by applying the rotation. We guarantee that order of log and search time in the dynamic environment. So tree can be rebalanced in at most order of log and time. Clear? जो बाइनरी सर्च ट्री थी वो कितना टाइम ले रही थी, फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ n, बट इट टेक्स ऑर्डर ऑफ log n.